Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति जानी मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। आज सभी को बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है और ये ऐसा रेमेडी है जिसका केसेस आप ज़्यादा देखते नहीं हैं प्रेजेंट होते हुए। तो आज इस रेमेडी का जर्नी समझने की हम कोशिश करेंगे मैम से। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। जी मैम। Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon, my dear friends. I'll start with the gratitude feeling. My heartfelt gratitude to Dr. Samuel Hahnemann, जिन्होंने इतना अच्छा होम्योपैथी का गिफ्ट हम सबको दिया है. My gratitude to Dr. Milind Rao sir, then Dr. Mohanty sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे IHF के mentors, Dr. Praveen Kumar sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Mahadik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, and all my HHF mentors and all my IHF family members. Okay. तो आज का जो केस है, तो फर्स्ट आई रीड आउट द केस. फाइन. आप लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है. थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रेमेडी बहुत लोगों ने पकड़ भी ली. तो आई जस्ट रीड आउट द केस. So this is the case of a 70 years old Maharashtrian female who stays very close to my clinic. Means I used to see her every day going in and out of the building. I have often seen her husband picking up the granddaughter from the school. She would bring her granddaughter to me for her treatment also. Now she would, but I have hardly seen her mother or her father, but I have seen the child with the grandparents. She would stay with her husband. This patient stays with her. Earlier, she would stay with her husband, who is retired now, son, daughter-in-law, both of them are working, and a granddaughter. Now, and her own daughter is married and well settled overseas. Now, this time she came for her own treatment. And she started saying that off late, she's complaining of internal trembling throughout her body. And she said, मला भीती सारखं वाटतं, की आतमध्ये भीती आहे. Inside I feel very much afraid. There is fear inside. She's afraid. And she feels the spinning motion in the head. She's afraid to move out alone. And also the other complaint was that she is very much fond of non-vegetarian food. But she stays in the premises of a temple. So she doesn't like to bring non-veg food at home and cook. So whenever she is at her relative's place, she relishes it. But when she comes to her place, then there is the pain in the abdomen starts and there is nausea and loose motion. So I used to get a lot of phone calls for her. कि डॉक्टर मी नॉनवेज खाल्लं आणि मला हे झालं. मीन्स मैंने नॉनवेज खाया और मुझे ये सब हो गया. She is also a known hypertensive and she is on antihypertensives. She is always well dressed and well groomed. अभी उसका हस्बैंड गुजर गए, बट देन उसका टीका वैसे का वैसा ही है. शी स्टिल वेयर्स मंगलसूत्र और उसकी साड़ियां भी वैसी ही है. यू नो, शी वुड अभी भी वो जैसे आजकल सब लोग कलरफुल साड़ीज पहनते हैं, लेकिन ना आफ्टर सर्टन एज, लाइक यू नो, शी इज क्रॉसिंग 70 नाउ. तो बट स्टिल हर साड़ीज वर, यू नो, विद द जरी बॉर्डर एंड एवरीथिंग. लाइक यू नो, फ्रॉम हर फेस nobody can make out कि she is a widow. Like, you know, she's so well dressed. And I asked her about her concern and any changes in her routine preceding all these complaints. That is our usual query, right? So पहले तो she requested me कि डॉक्टर मैं आपको जो भी बताऊंगी ना, आप किसी को बताइएगा नहीं, because मेरा क्लिनिक उनके एरिया में ही है. तो there are many patients of a building who have come to me. तो उसने बोला आप किसी को भी मत बताना, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ. तो मैंने बोला हाँ ठीक है, डोंट वरी. So then she said कि off late there are a lot of changes at home and after that this fearful state has started. Her son and daughter-in-law are heading for divorce.
And now son has taken up a job in London, and her daughter-in-law, so he has gone there, and her only daughter also stays overseas. So यहाँ पे इनकी family से कौन है? तो she and her husband, and then the daughter-in-law and the granddaughter. Now because they are heading for divorce, लेकिन because the granddaughter is in 12th standard, तो वो सब लोग they are staying together. And her daughter-in-law and granddaughter, they both misbehave with this couple. Daughter-in-law shouts at her on the least provocation and speaks to her very rudely, disrespectfully. मतलब हम सासू माँ है तो आप करके बुलाएंगे ना, तो अरे तू आज क्या खाना पकाएगी, क्यों तूने आज ऐसा कर दिया, very disrespectful. And her granddaughter also follows her mom's footsteps, and she also speaks to her in raised voice and very loud tone. And that our patient was surprised to hear that from her, whom she has looked after like a mother ever since she was born. तो ये है ना, because the मैं आगे बताती हूँ. When the patient, so ग्रैंड डॉटर ने ना उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया, तो एक बार तो, और उसके सामने ना वेरी इंसल्टिंग टोन में बात किया. तो फिर इसने बोला कि अरे हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हैव लुक्ड आफ्टर यू like my own baby. And she was so hurt. So from that day onwards, she broke all the ties with the granddaughter and she stopped talking to her. Normally, she was a very caring grandmom. But now, this one incident and the life changed. The IPR in the family changed. Okay, पूरा family dynamics बदल गया. क्योंकि उसके अंदर का डायनामिक्स बदल गया मन का, कि अरे मैंने तेरे को बड़ा किया है, जैसे मेरी बेटी को मैंने किया था वैसे मैं तेरे को कर रही हूँ, और तू मेरे से ऐसे बात कर रही है. And her son suffered, now we'll go little into the flashback. So her son suffered from poliomyelitis at 4 years of age, and now he limps and he stammers, and he has got a wrist drop, and he's a graduate, means well educated. But and उसकी जो daughter-in-law है, she is from an interior village in Maharashtra. But she's very healthy, no physical deformity. So at the time of their engagement, they revealed to the daughter-in-law's family about son's deformity, and she said कि हमने शर्ट निकाल के बेटे का सब बॉडी पार्ट्स दिखाया उसको, कि देखो इसको ना ऐसी ऐसी डिफॉर्मिटी है, और सिर्फ रिस्ट में ही है, हाथ बिल्कुल सही है, और पैर में वो ऐसा चलता है दैट यू कैन सी, और बोलने में ऐसा है, लेकिन बट he can communicate and he is well educated and he was earning well. तो और फिर उसने अपनी होने वाली बहू को भी बोला कि देख, अगर तू 100% कन्विंस है तो ही तू हाँ बोलना, नहीं तो प्लीज इट्स ओके. So she herself spoke to the would-be bride to take her own time before saying yes to this proposal. And but this girl agreed, and after the marriage, she conceived very soon. And in a year, this baby girl was delivered. But then her behavior with her husband changed overnight since then. And she started avoiding him. She stopped sleeping next to him and always kept the daughter in between. Now her son is also my patient, and he shared all this information with me. So our patient was not knowing all these things during the initial years. So she thought that daughter-in-law जो गांव से आई है, and then immediately after marriage she was pregnant, and then there was this delivery. So then उसका education बाकी रह गया. So she said कि चलो भाई पहले तुम अपना education complete करो. So then the daughter-in-law also showed the interest, and so उसने उसका फीस भरा और उसका education complete किया. And फिर बाद में बोला कि चलो भी आजकल के जमाने में, though my son is earning well, but then still you need something for yourself. So and because I'm young and I can look after your daughter, then so I will look after the granddaughter, and you go and you earn, and you support yourself, like you save for yourself, you be occupied. So the daughter-in-law was very happy, and so she started working. और उसके काम के घंटे भी इतने थे, they were very long hours. She would leave early in the morning, means समझो around 8 to 9 o'clock, and she would always be back at 8 o'clock. Means 8 o'clock जब मैं घर पे जाती थी, तो sometimes I used to see her.
कि वो आ रही है. तो और उसके जो नेबर्स हैं उन्होंने उसको उसके रिलेटिव्स ने उसको बोला था कि यू डोंट पैम्पर योर डॉटर इन लॉ सो मच कि अल्टीमेटली वन डे यू विल हैव टू रिपेंट. लेकिन इसने बोला कि नहीं, ये लोग है ना मेरे घर में मतलब आग डालते हैं, इन लोगों को पसंद नहीं है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ इतना अच्छा करती हूँ. तो फिर देन शी कंटिन्यूड डूइंग हर whatever she wanted to. And later, even she got her a job using her influence. Then, throughout the daughter-in-law would leave early and return around 8 p.m. or so. And so, throughout the day, the granddaughter would be with her. She didn't keep any domestic help also to avoid any expenses, and she herself changed the girl's nappy and taking her to the doctors and looking after her tantrums and taking her to the garden to play and everything, like she was done by her. And when she was admitted in the school, then her husband would go to drop her, the granddaughter, and pick her up. वो तो मैंने भी देखा था. Like grandfather used to carry the girl's granddaughter's bag on his shoulder, and the girl was very sweet, and she used to come first in her class because grandfather used to make her study. ठीक है? So so they were very much, and she was very good looking, so they were very proud of her granddaughter. And the daughter-in-law had long working hours, so patient would be doing most of the cooking and looking after the house, shopping part of the cleaning part of the house, everything was done by her. The neighbor also warned her कि देख ये बच्चों क्यों बहू की बेटी को इतना सब कुछ अच्छे से रखती है, अल्टीमेटली ये तेरी बच्ची नहीं है, दिस बिलोंग्स टू योर डॉटर इन लॉ, और बड़ी होके ना वो अपनी माँ के पास ही जाने वाली है, देखो भाव भी नहीं देने वाली है. बट देन वो बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है. लेकिन she was her own daughter, but again she turned a deaf ear to her and did all possible she could do for the granddaughter. And when she learned about the IPR issues between the couple, तो उसने अपने बेटे को बोला कि अभी है ना तू शांत रह, शायद थोड़ा दिन में मतलब आगे जैसे जैसे टाइम जाएगा सब ठीक भी हो जाएगा. So now she says कि I was a fool to do it. My relatives and neighbors were right. When my granddaughter disrespected me, I was so hurt. Now फिर वो अपनी व्यथा सुनाती है. I did so much for her, and how can she talk to me like this? Since then, I'm so angry with them. Daughter-in-law at times abuse her. She cooks separately for both of them, and she accuses her to have added something in the food. But if patient opens her mouth, then means patient कुछ अपना सफाई देने जाती है या कुछ आर्ग्यूमेंट करती है, so the daughter-in-law is so abusive that she starts cursing her. And after hearing all this, she has got this fear कि what if it turns out to be true? तो इसीलिए वो बोलती है कि and then she developed that internal trembling. So this was the reason behind her fear. So she keeps mum. और उसका वो अंदर से वो बहुत गुस्सा होती है. But then she says और यहाँ पे उसके पास कोई नहीं है ना, उसकी डॉटर भी बाहर गांव है और बेटा भी परदेश में है. So like she and her husband, they both are alone. And they are like senior citizens, and this mother and daughter, they are young and full of vigor. So daughter-in-law doesn't leave a single chance to abuse and curse this family. So patient prefers keeping mom and feels relieved once she goes for her work. और फिर बेटी घर पे रहती है, लेकिन बेटी भी क्या करेगी कि वो बाहर जाती है तो she will not shut the door, main door, वो खुला छोड़ के जाएगी. And this elderly couple, they are sleeping. So, then the grandmother has to get up and, she herself has to shut the door. So, बोली कि ऐसा सब कुछ हो गया है. So, this is the case, and I got very good results. मैंने no doubt मैं first prescription में ये remedy तक नहीं पहुंची थी. जैसे आप लोगों ने suggest किया ना Natramune, Staphysagrina, तो मैंने भी वो सारी दवाइयाँ दी थी, but then it didn't work. And her recurrent stomachache improved with the right medicine. And the spinning of the head and trembling sensation has also improved. And then they changed the lawyer, and ultimately the divorce happened. And she and her husband were staying together, and
unfortunately she lost him also, and now she's staying alone. But that fear factor has gone, and now she says I can stay alone, and she's very confident now. ऐसे कैसे दिखता है कि the way she is dressing up, उसका कुछ बदला नहीं है. You know, she's still well groomed, well dressed, and wearing all good sarees. Okay, so this is the case. Now, I hope you all have understood it. So, please tell me your opinion. हेलो, Yeah, गुड आफ्टरनून मैम, जागृति मैम. हाँ, तो good ये afternoon. केस, हाँ, ये केस में क्या लगा ना, ये लेडी ना बहुत सहनशीलता है, मीन्स बहुत सहन करने वाली है ये. और ये सर सारा ने उसने ग्रैंड डॉटर के लिए किया. अपने मीन्स बेटे का संसार जो है वो बचाने का बहुत कोशिश कर रही है. लेकिन जो डॉटर इन लॉ उसके साथ बिहेव कर रही है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. बट शी कांट से एनीथिंग. और ये अभी नहीं, हेल्पलेस भी लगी है कि ये सीनियर सिटीजन है, इसका इन दोनों का कोई सुनने वाला भी नहीं है, और ये दोनों ये सपोर्ट भी नहीं करने वाली है. तो यहाँ पे ना डॉटर इन लॉ जो सॉरी ग्रैंड डॉटर जो बोल रही है ना इसको पेशेंट को, ये उसको हर्ट हो गई है कहाँ पे, तो बहुत उसका सटल डिग्निटी लग रहा है मुझे कि ये कैसे बिहेव कर सकती है ना मेरे साथ. उसका मैंने जो सारा किया है अपने बेटी के जैसे उसको ये किया है ना, बड़ा किया है, तो ये कैसे बिहेव कर सकती है मेरे साथ. तो थोड़ा सा सटल उसका यूगो भी हर्ट हो गया, इंडिग्नेशन फील है. तो स्टैफी का फील आ रहा है कि उसका एंगर भी बहुत है, लेकिन वो निकालती नहीं है. एंगर सप्रेशन भी बहुत है. हाँ मैम, यू आर राइट. ये एंगर सप्रेशन बहुत है, उसको इंडिग्नेशन है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है ना, स्टेफी का रिएक्शन और ये मेडिसिन का रिएक्शन ना डिफरेंट होता है. तो स्टेफी का रिएक्शन क्या होगा आपके हिसाब से? बोलो. कहाँ पे तो वो बस्ट हो जाएगी, लेकिन ये वो निकालती ही नहीं है. तो थोड़ा सा रेमेडी का तो नहीं ये कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा स्टैफी लग रही थी मुझे ये. इग्निशा भी होती. मैंने है ना स्टेफी किया हुआ है. यू आर ओके राइट. ओके ओके ओके. इग्निशा होती तो भी, हाँ हाँ, क्या इग्निशिया होती तो? इग्निशा भी कहाँ पे तो जाके डिफाइंड होती थी ना. एम्बिटर्ड है, अल्टीमेट लास्ट स्टेज में वो भी डिफाइंड है. हाँ होती थी ना, ये तो कुछ भी. हाँ, तो मुझे थोड़ा एक पेट्रोलियम जैसे भी लग रही है ये लव फॉर फैमिली और एंगर है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, कावर्डाइज. तो कावर्डाइज नहीं है ये ना, उसके मन में फियर बैठ गया है, क्योंकि बहू ना शी कर्सेस सो बैडली. बहू गांव की है, मतलब लोग करते हैं ना, दैट इज टू मच नो. तो इसको डर बैठ गया है कि अरे ये सब कुछ सही हो गया तो. अच्छा अच्छा, वो तो सुपरस्टिशियस भी ले सकते हैं इसको, थोड़ी ऐसा होता है, एक इलॉजिकल है ना ये तो. नहीं, लेकिन कोई इतना स्ट्रांगली आपको डे इन एंड डे आउट बोल रहा है, तो अगर पर्सनालिटी जो टिमिड होती है तो fearful, it shows a fearful nucleus. ओके ओके ओके. तो मैम, अब हम बात कर रहे थे स्टेफी और इग्नेशिया है ना आपके हिसाब से. हाँ हाँ हाँ. तो उसको कैसे रूल आउट करेंगे? मैंने इसको इग्नेशिया भी किया हुआ. ओके, तो ये एंगर, हाँ, तो रिएक्शन के उसके ऊपर ही डिफरेंट हो जाएगा ना. ये दोनों भी रेमेडी एक सटल मीन्स इंटॉलरेंस होने के टॉलरेंस करेगी फिर बाद में बस्ट आउट हो जाएंगे ना दोनों भी. लेकिन स्टेफी है ना, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स है. स्टेफी खुद डिग्निफाइड है. स्टेफी का क्या है, माइल्डनेस है ना. बियॉन्ड द, कभी एक टाइम के बाद स्टेफी विल कीप मम. बराबर. तो ये इसने क्या किया ग्रैंड डॉटर के साथ? स्टेफी होता तो क्या करता था? ग्रैंड डॉटर 12th में है. अगर रियली केयरिंग और वो सब लेडी है तो वो ग्रैंड डॉटर का 12th संभाल लेती थी ना, कि हाँ बराबर. भी करके इसका 12th है, हम संभाल लेते हैं. पर यहाँ पे इसने क्या किया? यहाँ पे ये रेमेडी डिफरेंट है. ओके 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 ओके. फिर आगे हम देखेंगे. ओके, थैंक यू. या नाइस एनालिसिस. और कोई?
जी और बताइए। डॉक्टर जागृति कोठारी, आपने भी अच्छा एनालिसिस किया था, आर यू देयर? हेलो जागृति मैम। हेलो। या यस मैम। या गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, मैम आपका मुझे ये एनालिसिस लगा भी अच्छा था। मुझे लगा कि ये पेशेंट एम्बिटेड हो गई है एंड उसकी वजह से जैसा आपने लिखा है कि वो ग्रैंड डॉटर से बात करना उसने बंद कर दिया है। एंड फर्स्ट मैं भी स्टेफी एंड इस पे ही थी, लेकिन बाद में आपने जब बोला तब मैं थोड़ा एम्बिटेड और वो सोचा, हेट्रेड सोचा, एंड इसलिए मैं कोलोसिन की तरफ गई कि मैंने इतना इतना किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। राइट, ओके। एंड देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इग्नेशिया और स्टेफिसेग्रिया? I won't be able to tell. हाँ ठीक है ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑल दीज रेमेडीज दे आर वेरी क्लोज। या मैम। और ये सब जो है ना इंडिग्नेशन और ये सब, ये बहुत साथ में चलते हैं। जी एनीवे, बट वेरी गुड एनालिसिस। हाँ, आपने सही पकड़ा। ओके, थैंक यू मैम। और कोई बोलना चाहेगा? जी बताइए प्लीज। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ डॉक्टर विनय। हाँ, ये जो लेडी है ना, ये अपने जो सन है उस आप जैसा मम्मी अपने जो बच्चे का अपन मराठी में बोलते हैं ना, वो संसार का बहुत केयर कर रही है। और वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो इतने उम्र में भी निभा रही है। और ये जो सिचुएशन है ना, वो बहुत स्वयं से और काफी सोच समझ के हैंडल कर रही है। कि उसको ये भी डर लग रहा है कि भाई अपनी जो बहू है, ये जरा ऐसी गालियां दे रही है अपने को, इतने बुरी तरह से उसके साथ बिहेव कर रही है, तो कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए, इसके लिए उसने जो अडेप्टेशन है ना, वो बहुत केयरफुली, इसके अंदर गुस्सा है, उसको वो बहू के साथ लड़ भी सकती है, पर नकली होने के कारण, और उसका जो बेटा है वो उसके पास नहीं है, उसकी डॉटर भी उसके पास नहीं है, तो सिचुएशन को बहुत ही सावधानी से फेस कर रही है वो। और वो जो सिचुएशन में जी रही है, उसके ऊपर जो भी उसके डॉटर इन लॉ और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है, उसके साथ जो मिसबिहेव किया, और उसकी वजह उसके मन में जो फियर, इनसिक्योरिटी, जो भी उसका अपमान हुआ, इंडिग्नेशन हुआ, उसकी वजह से उसको ये एलिमेंट्स आ गई, उसको डिसरिस्पेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि आप हेमेमालिस के साथ जाना चाहिए। ओके, हेमेमेलिस के पास। हेमेमेलिस में भी ये इंडिग्निटी फीलिंग है, बट देन हेमेमेलिस है ना इज वेरी इगोइस्टिक रेमेडी। देखो एक मिनट, मुझे जितना हेमेमेलिस मालूम है, हेमेमेलिस है ना खुद ऐसा समझेगा कि आई डिजर्व द रिस्पेक्ट। यस यस। तो ये है ना ऐसा नहीं बोलती है। सी दिस लेडी इज कमांडिंग रिस्पेक्ट। उसका बिहेवियर ऐसा है कि हम लोग को भी लगता है कि अरे इसने इतना किया है। तो यहाँ पे ये हेमेमेलिस से अलग होगी, लेकिन फिर भी बराबर डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग अपने सीनियर्स देंगे। ठीक है? यस यस।
ओके हाँ, लेकिन इसका जो एक पहलू है ना वो जो MMLs में नहीं है, दैट मच आई वुड मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है? तो आई जस्ट Yes, क्लियर sir. इट कि इसका क्या, Yes. which part of it, which part in this case is typical to this remedy. अच्छा और कोई बोलना चाहेगा? Shall I disclose now? I think the remedy is already on the floor. Or congratulations, Dr. Jagruti Kothari. आपने कोलोसिन सही पता है. This patient is कोलोसिन. She responded very beautifully to कोलोसिन. और हमारे जो भी ड्रग्स है ना, हम लोग स्टेफिसाइड्रिया, नाइट्रम्यूर, कार्सिनोसिन, मैंने उसको सिलिका भी दे चुकी हूँ. ये सब मैंने उसको दिए हैं. अच्छा, अभी यहाँ पे ना कोलोसिन का एक जो फीचर मेन है, जो स्टेफिसाइग्रिया और नाइट्रम्यूर और कार्सिनोसिन ये सबसे अलग करता है, सो दैट इज जो मेन इसका है ना कि कभी उसको व्हेन शी वाज हर्ट द मोस्ट, कि जब उसकी ग्रैंड डॉटर ने उसके साथ बहुत ही इंसल्टिंग टोन पे बहुत ही लाउडली बात किया, राइट? सो दैट वाज द लाइक, देखो वो उसकी डॉटर इन लॉ को टॉलरेट करती थी. उसकी डॉटर इन लॉ पति के साथ बेटे के साथ बराबर से बात नहीं करती है, तो उसने उसके बेटे को बोला कि भैया यू हैव पेशेंस, धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. लेकिन जब उसकी ग्रैंड डॉटर शी स्टार्टेड मिसबिहेविंग विथ हर, दैट वाज द अल्टीमेट पॉइंट. एंड तभी शी चेंज हर एटीट्यूड एंड शी सेड नथिंग डूइंग नाउ, नाउ आई एम ब्रेकिंग ऑल द टाइज विथ यू. अभी हो चुका हमारा, ठीक है? सो दिस फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग है ना, दैट इज कॉल्ड कि एक शॉट में ही ना सब खत्म हो जाता है. ओके, सो मीन्स यू आर हर्ट एंड यू आर हर्ट सो बैडली कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज चेंज्ड. You are no longer the same person. The relationship is not the same as it was, and this is mortification. अभी ये जो वर्ड है ना mortify, ये हम लोग ने कहाँ सीखा सबसे पहले? तो हमने सीखा है फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक सब्जेक्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ना, सेकंड BHMS में. तो उसमें क्या था कि when will you call कि पोस्टमार्टम में कि this organ is mortified. तो कभी बोलते हैं कि जब भी जो ऑर्गन है is damaged to such an extent that it can't be recognized from its physical appearance and it loses its functions what it used to do earlier. ठीक है? जैसे stomach face है, the face is so much disfigured that you can't recognize the person, right? stomach है that is so disfigured कि हमको पता ही नहीं चलता है कि अरे जैसे बर्न विक्टिम है, हाँ तो पूरा मॉडिफाइड है ना, अपने को पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है. वेरी बैड एक्सीडेंट केस. सो ऑल द ऑर्गन्स आर डैमेज टू दैट लेवल ऑफ डैमेज जो भी होता है ना कि इट लूजेस इट्स ओरिजिनल शेप, साइज, फंक्शनैलिटी, then it is called mortified organ, right? So this is the origin of the word mortification. उसका नाउन है. तो यहाँ पे ना ये mortification इसको ऐसा लगा कि ये एक इंसिडेंस हुआ and then the whole life changed. She is no longer the same grandmother what she used to be. एक झटके पे उसने बोला कि I am breaking all the ties with you, no more. And then you know the family dynamics changed. ठीक है? I hope I am clear now regarding this matter. So my first rubric was ailments from anger, ailments from mortification. ठीक है? See, when we see ailments from mortification, now we've got 140 remedies in Adonis. Okay? अभी उसका एक सब रूब्रिक है, ailments from mortification with anger. तो यहाँ पे एंगर भी था उसको कि वो उसकी बेटी को बोलती है, सी हमारे मुंह से भी ना बेटी ही निकलती है, इट्स अ ग्रैंड डॉटर एक्चुअली, कि अरे मैंने तेरे को कैसे किया है, आई हैव चेंज योर नैपीज, जो मैंने अपनी बेटी का किया है वो मैंने तेरा किया है, एंड देन तू मेरे से ऐसे बात कर रही है. तो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ कोलोसिन, कि दैट वन थिंग एंड everything changes, you know. So this is mortification is very important to collagen, and this is what
makes it stand out different from Staphylococcus aureus, Ignatia, Hemimeliis, carcinosin. ठीक है, कार्सिनोसिन में है ना, कार्सिनोसिन इज नो डाउट शी इज बीइंग अब्यूज्ड एंड लेकिन कार्सिनोसिन अल्टीमेटली इज इन हार्मनी डिजायर फॉर्म, शी इज इनटू केयरफुल लव ऑफ द रिलेटिव्स. तो अगर वो कार्सिनोसिन होती तो अपने उसकी ग्रैंड डॉटर को ना, उसका 12th चल रहा है तो उसने नजरअंदाज किया होता कि ठीक है चल 12th होने दे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फेज इन हर लाइफ, नो माइलस्टोन वन हैज टू क्रॉस. तो इसलिए ये कार्सिनोसिन में से रूल आउट हो गई. इग्नेशिया में भी ये मॉडिफिकेशन का है, लेकिन इग्नेशिया वुड आल्सो कम डाउन विद सम हिस्टेरिकल सिम्पटम्स. दूसरा होगा नेट्रम्यूर. तो नेट्रम्यूर हरसेल्फ इज डिग्निफाइड, और ये इसने ना ये सब कुछ सीधा बोल दिया आके मुझे, राइट. नेट्रम्यूर होती तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एफेक्टेशन, वो मुझे नहीं लगा ये केस. सो नेट्रम्यूर वाज रूल्ड आउट. एंड देन सो द रूब्रिक्स व्हिच आई टुक, एमएमएलई से ना हम पूछेंगे अपने सीनियर्स को, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन है ना, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ कोलोसिन. ओके, और the rubrics I took was, so I'm posting this chart in the group. So the very first rubric I took was ailments from anger with indignation. So what is dignity? Dignity is, हम लोग बोलते हैं ना, all the dignitaries, जो dignitaries है कोई भी function में वो कहाँ पे बैठता है? In the first row. वो लोग आते हैं तो उन लोगों का वी वेलकम देम, उनके हाथ में फ्लावर्स का बुके हम लोग ऑफर करते हैं, उनको अच्छा पानी पिलाते हैं, अच्छी जगह देते हैं, राइट. सो डिग्निटरीज आर द पीपल whom we respect. And why do we respect them? Because of their own conduct. उन्होंने ऐसा कुछ किया होता है that they deserve respect. Okay, so that is dignity. तो ये लेडी भी उसने she deserved respect, right? The way she has dealt with her daughter-in-law in the past, the way she has dealt with her granddaughter, और वो फैमिली के लिए भी इतना कर रही है, लेकिन ये पूरा डिग्निटी गया उसका. सो एलिमेंट्स फ्रॉम, और तब से ये कंप्लेंट शुरू हुआ. तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन. सेकंड रूब्रिक आई टुक वाज एंगर सप्रेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड. वो गुस्सा हो रही है, लेकिन इज शी एबल टू एक्सप्रेस इट आउट? नो. वो क्या कर रही है? चुप बैठी है ना. क्यों? डर से कि क्या हो जाएगा, मेरी बहू ना शी इज कर्सिंग मी, और नो डाउट कर्स तो करती है. सो देयर इज फियर इन हर, फियर समथिंग विल हैपन, समथिंग विल. दूसरा, अभी ये रूब्रिक मैंने तभी लिया था, फियर हैपन समथिंग विल, लेकिन एक्चुअली एक रूब्रिक भी है, अगर हम रिट्रो देखें तो फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म है, कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि कर्स आता है ना किसी का तो बहुत बुरा होता है. सो दैट फियर शी हैड. देन एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस. वो बहू बोलती थी उसको, मैं खाना बना के जाती हूँ, मेरी बेटी के खाने में ना तुम कुछ डाल रही हो. एंड दिस इंसिडेंट आई हैव नॉट नरेटेड, बट एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक दिन ना दिस लेडी शी वेंट आउट, और वो कुछ लॉयर को मिलने गई थी, एंड शी रिटर्न होम एट 10 o'clock. सो उसकी बहू ने उसको क्या बोला, कहाँ पे तू धंधा करके आई ये टाइम पे? Now imagine this statement of धंधा करके आई at 10 o'clock. I mean, see, this is so disrespectful and क्या बोले इसके लिए, this is the mortification. I mean, the indignation feeling, जो आप बोलो वो, everything is covered in this rubric, right? So ailments from reproaches, ailments from mortification, ailments from disappointment. उसने अपनी बेटी को कितने नाजो पालो से अपनी ग्रैंड डॉटर को पाला था, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, राइट? सो एंड द रेमेडीज आई गॉट, मैंने ये जो चार्ट है ना अपने ग्रुप में डाला है, यू कैन गो थ्रू इट. कोलोसिन, नेट्रम्यूर, लाइकोपोडियम एंड कार्सिनोसिन. सो नेट्रम्यूर, एज आई टोल्ड यू, उसका अफेक्टेशन होगा, और ये ऐसा सब कुछ बोलेगी नहीं अपने पास. लाइकोपोडियम है तो इतना सब कुछ करेगा भी नहीं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, वो अपना कैलकुलेटिव लेगा. हाँ, एंड लाइक लाइकोपोडियम विल बी काइंड टुवर्ड्स सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इंफीरियर. तो कहीं पे ना उसने अपनी बहू को ना दबा के भी रखा होगा था, लेकिन यहाँ पे तो बहू एकदम ही दबंग हो गई. एंड कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन जैसे मैंने बोला कि
फिर भी वो सबको इकट्ठा करने का लग रहा है। एंड देन डिल्यूजन, शी इज अ मार्टिर, अपने आप को बोलती थी कि देखो सब घर अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम इसके पीछे मैंने कितना भोग दिया है। सो दैट इज नॉट द स्टोरी इन दिस केस, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे बोला ना सबने कि उसका ये जो है ना कि शी डजंट हैव नॉनवेज इन द बीइंग इन द टेम्पल प्रीमाइसेस, शी डजंट कैरी नॉनवेज एट होम। तो ये है ना हम लोग क्या लेंगे उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंड शी इज वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड। तो एक्चुअली ना व्हेन आई जॉइंड एचएचएफ तभी है ना मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई भी सिम्टम है ना तो हम लोग उसको रूब्रिक कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एवरी सिम्टम इज लाइक एवरी ट्रेट ऑफ अ पर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रूब्रिक। लेकिन फिर मैंने ये कोलोसिंथ आर्चिबेल की नोट्स रडार में पढ़ा ना, तो उसमें द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज प्रॉपर। अभी है ना हम लोग सिंथेसिस में तो एडोनिस में प्रॉपर में कोलोसिन नहीं है, और कंप्लीट में भी प्रॉपर तो रूब्रिक नहीं है, सीरियस में भी कोलोसिन नहीं है। लेकिन जब हम रडार मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो द वेरी फर्स्ट वर्ड गिवन फॉर कोलोसिंथ इज प्रॉपर, हैविंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड दे आर वेरी रिजर्व्ड, दे ट्राइज टू हाइड कंप्लेंट्स। मीन्स इसने भी पहले आके ना शी फर्स्ट टुक मी इनटू कॉन्फिडेंस कि आप है ना किसी को बताना नहीं कुछ भी, ठीक है। So this is how we can explain this behavior of hers. Now let us study NADS repertory. नहीं NADS, हाँ ये NADS repertory है. Sorry, I forgot the name of this repertory. हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते नहीं है ना. Murphy's repertory, हाँ. तो Murphy's में से ना मैंने उसके rubrics निकाले हैं थोड़े, जो ailments from abuse, okay? Ailments from anger with abuse. Ailments from anger in general, ailments from grief with silent grief, ailments from suppressed anger, anger with indignation, anger from reproaches, carried over shoulders. अभी देखो ये रूब्रिक है ना, carried desires to be carried over shoulders. तो हम लोग एडोनिस में देखेंगे ना, carried shoulders, desire to be carried over shoulder. तो उसमें है ना अपने को कोलोसिन नहीं मिलता, right? There are only 6 remedies in the Adonis: ammonium causticum, Sina, Corellium rubrum, Podos, Tenum, and Stramonium. But it is given in ये Murphy's repertory. तो आप लोग जरा इसको ध्यान रखना. एंड हाँ ये पेशेंट है ना मुझे अभी बोलती है बिकॉज नाउ शी स्टेज अलोन इन द हाउस एंड आवर मेडिसिन इज हेल्पिंग हर आउट. तो उसको कुछ भी होता है ना वो मेरे को फोन करके बोलती है अभी है ना डॉक्टर आप ही सब कुछ करो, अभी मैंने अपना जिम्मेवारी छोड़ दिया, अभी आप ही सब कुछ, आपको जो करना है वो करो. तो दैट इज ये जब भी फे होता है तभी हम लोग ये रूब्रिक लेते हैं, कैरिड ओवर शोल्डर्स. तो कोलोसिंथ इज आल्सो कवर्ड इन दिस रूब्रिक. देन डिल्यूजन, हाँ डिल्यूजन, जनरल हेल्यूसिनेशंस, फ्लाइंग थिंग्स आर विजन्स फ्लाइंग अवे. जैसे उसकी बेटी है ना जिस ग्रैंड डॉटर, उसने कितने नाजों से उसको पाला था, नाउ शी इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम हर. ओके, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वे. एंड देन desperation behavior drives him to colic. अच्छा, and embittered, exasperated. अभी embittered है ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोलोसिंथ इज कवर्ड इन दिस, ओके. लेकिन hatred for person who is offended उसमें कोलोसिन नहीं है. अच्छा, एक किसी ने डॉक्टर ने नाइट्रिक एसिड भी सजेस्ट किया था, बट नाइट्रिक एसिड इज नो डाउट, ये इसमें नाइट्रिक एसिड इज कमिंग वेरी क्लोज, बट द नाइट्रिक एसिड हरसेल्फ नो एज अ पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. और इसका जो फियरफुल न्यूक्लियस है ना कि बहू गाली देती है या बहू ऐसे कर्स करती है, तो इसको लगता है कि ये सब सही हो जाएगा, हमारी फैमिली पे कर्स आएगा. लेकिन वो नाइट्रिक एसिड तो बुलशिट, वो शी वुड बी कर्सिंग दैट पर्सन. ओके, अगर नाइट्रिक एसिड होती ना तो शायद डॉटर इन लॉ हमसे दवाई लेने को आती. तो दिस इज अबाउट दिस केस एंड कोलोसिन.
Any queries? I think this is what I have explained. This is all from my side. Sir, आप आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी मैम, जी 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 मैम, जी वेरी नाइस केस मैम, बहुत ही बढ़िया केस। और कुछ सर हेमामेलिस का अगर कुछ? जी हाँ मैम, वो जो आपने बताया ना हेमामेलिस में ईगो बहुत ज्यादा रहता है और उसको होता है कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए, मेरे जो ओपिनियंस हैं उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उनको माना जाना चाहिए। तो हेमामेलिस में उस तरह से रहता है। कोलोसिंथ में अलग रहता है, जैसे कि आपने बताया ना कि उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। कोलोसिंथ इज वेरी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है र्यूडनेस को लेके। यस सर। कोई उसको र्यूडली उससे बात करता है, उसको अब्यूज करता है ना, ये चीज बहुत ही ज्यादा उसके लिए पेनफुल होती है। हाँ सर, यस सर, यस सर। तो किसी को कोई क्वेरी है क्या? मैम एक Actually, पूछना था, हाँ जी बोलिए। यहाँ पे डांसिंग अनकॉन्शियस कैसे रूल आउट करेंगे? वो मतलब बहू को ये किया, सीखने के लिए प्रमोट किया, सब काम करती जा रही थी, ग्रैंड डॉटर को भी बहुत संभाला उसने, although her relatives were telling her don't do so much, so this can be taken as dancing unconscious मेरे हिसाब से। so where to rule it out, मुझे प्लीज बता दीजिए। मैम, डांसिंग अनकॉन्शियस मेरे दिमाग में भी आया था व्हेन आई वाज राइटिंग दिस केस टेकिंग के टाइम पे नहीं आया, बट कल मैं जब ये केस टाइप कर रही थी ना तो मुझे लगा कि ये डांसिंग अनकॉन्शियस है। तो ये हो सकता है डांसिंग अनकॉन्शियस, हाँ, लेकिन फिर है ना मैम, वी हैव टू सी द केस इन इट्स होल टोटलिटी। उसका डांसिंग, लेकिन जो एसिड फॉस का रिएक्शन है ना, एसिड फॉस हरसेल्फ गोज इनटू becomes indifferent, morose, ठीक है, यहाँ पे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो अपने शेल में चला जाता है एसिड फॉस, will stop talking to the people around। और यहाँ पे इसने क्या किया, she is well dressed and everything, सही, सब कुछ सही है, उसने सिर्फ वो ग्रैंड डॉटर के साथ बोलना बंद किया। so that is her anger, her hate, bitterness, the embittered feeling towards the granddaughter who has offended her। ओके, तो ये एसिड फॉस है ना, इन जनरल उसका मोरोज एंड टेसिटर्निटी में जाता है, इंडिफरेंस में जाता है। आई होप मैंने समझाया है आपको। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच। या यस, एनीवन जी एल्स? मैम। हेलो मैम। यस मैम। मैम प्लीज नाजा को भी क्लियर कीजिए यहाँ पे। नाजा, अच्छा देखो, नाजा है ना वो इंडियन स्नेक है, राइट? तो हमारी इंडियन मेंटालिटी है ना कि वी टॉलरेट टॉलरेट, ठीक है? तो ailments from being abused, ailments from being abused sexually, लेकिन नाजा इज ऑल्सो इनसेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशंस। एंड नाजा में दूसरा क्या इंपॉर्टेंट आता है, बीइंग अ स्नेक रेमेडी, इज विल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हैविंग टू ट्रेन्स ऑफ थॉट, कि मैं इसके साथ रिवेंज लूं या मैं इसको चुपचाप जाने दूं। नाजा इज हरसेल्फ इन एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। ये जो है ना, एंटागोनिज्म, टू ट्रेन्स ऑफ थॉट, विल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ, जो सब एक ही इस पे चलते हैं, तो ये नाजा में इंपॉर्टेंट होगा, प्लस ऑल द अदर एनिमल थिंग्स लाइक वांटिंग टू बी अट्रैक्टिव, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब कुछ ना, जेलसी, वन अपमैनशिप, विक्टिम फीलिंग, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ना उसका अभी नो डाउट हम लोग मिनरल किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो वी हैव टू टेक द केस, वी हैव टू गो एट द लेवल ऑफ सेंसेशन, तभी हम लोग किंगडम डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये जो है केस, ये इमोशनल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे ना ज्यादातर इमोशंस उभर के आए हैं उसके, ऑफ इमोशंस ऑफ बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंगर, देन इंडिग्निटी, इंडिग्नेशन, ह्यूमिलिएशन, मॉर्टिफिकेशन। जो सबसे बड़ा इमोशन यहाँ पे आया है दैट इज मॉर्टिफिकेशन।
सेकंड बड़ा इमोशन यहाँ पे आया है, दैट इज पिक्यूलियर टू कोलोसिंथिस. फर्स्ट इज मोटिफिकेशन, द सेकंड इज द एम्बिटर्ड फीलिंग. उसने नहीं, अभी ग्रैंड डॉटर चाहिए ही नहीं. इमेजिन जिसको हम लोग लाइक यू नो शी इज लाइक अ मदर, राइट? उसकी मम्मी काम पे जाती थी और तभी शायद वो ग्रेजुएशन कर रही होगी. तो बट नेचुरल, नो, यू नीड समबडी एज अ सपोर्ट सिस्टम. तो शी वॉज अ रॉक सॉलिड सपोर्ट फॉर हर. तो ये जो सारे इमोशंस है ना, सो दिस इज यहाँ पे ना इमोशंस ज्यादा उभर के आए हैं. और एनिमल थीम होता ना तो वहां पे विक्टिम एग्रेसर आता था. बहू ने मुझे ऐसा किया, वो मेरे को ऐसा करती है, बेटी ऐसा करती है, मीन्स यू नो मी वर्सेस यू, राइट? दैट इज एनिमल थीम. ओके. और यहाँ पे सेंसिटिविटी, उसका ये बिहेवियर मुझे अफेक्ट करता है, दैट इज सेंसिटिविटी. ओके. और सो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन होगा. यस मैम. लेकिन नाजा का ना जो विल कॉन्ट्रडिक्शन होगा ना कि और एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ, नाजा है ना ड्युअलिटी में होगी कि मैं उसके साथ रिवेंज लूं या इसको छोड़ूं. फिर अल्टीमेटली हम लोग वो स्टोरी है ना कि देयर वाज अ स्नेक हु वाज वेरी फ्रेंडली विद द, देयर वाज अ विलेज एंड देयर वाज अ स्नेक हु वाज वेरी फ्रेंडली विद द किड्स अराउंड. तो जब भी बच्चे खेल रहे होते थे ना, ये स्नेक भी आके आ जाता था एंड देन यू नो ही कुड एंजॉय. कहीं पे ना किसी को भी वो बाइट नहीं करता था. So ultimately, now the children were also like, you know, they also got used to him, and you know they started throwing stone at him. And ultimately, क्या हुआ कि वो snake जो है वो like you know पूरा injured हो गया. और पहले हाँ ऐसा था कि वो एक साधु महात्मा वहां से आए. या sorry, the story is like this कि there was a snake in the village and they were you know children were everybody was very much afraid of him. तो एक साधु वहां से पसार हुआ और वो स्नेक आया, वो साधु को डराने लगा. तो तभी साधु महात्मा ने उसको बोला कि अरे व्हाई आर यू लाइक दिस यार, यू नो यू कैन बी इवन डोंट आप यू नो यू. क्या उसको उपदेश दिया कि इतना भी पॉइजनस बिहेवियर नहीं बताना सबको, लाइक यू बी फ्रेंडली विद देम, एवरीबडी इज नॉट लाइक दिस. तो देन यू नो उससे चेंज हुआ. तो स्नेक पूरा जैसे साधु ने बोला वैसा बन गया कि वो सबके पास जाने लगा, मतलब वहां जाके बैठता था, किसी को हर्ट नहीं करता था, कुछ नहीं. तभी तो क्या हुआ उसका लोगों ने उसको गलत ले लिया एंड यू नो दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम एंड देन ही वाज इंजर्ड एंड हर्ट. एंड वो ही साधु महात्मा वहां से गुजरे और फिर वो देखा कि साधु महात्मा ने अरे स्नेक को पूछा, अरे तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई, लास्ट टाइम तो एकदम हट्टा कट्टा था. तो बोला कि देखो आपने मुझे ये उपदेश दिया ना कि ये मत करो किसी के ऊपर, कि डोंट बाइट एनीबडी एंड बी वेरी गुड विद पीपल अराउंड यू. तो देखो मैं ऐसा हो गया हूँ. लेकिन तभी साधु ने बोला कि हाँ यू शुडंट बाइट बट एटलीस्ट यू थ्रेटन देम विथ योर हुड. ओके. जैसे नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में भी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन गुजराती में ना माय मदर टंग हम लोग ऐसे बोलते हैं कि करड़वानु नहीं पण फूफाडो मारवानो. मीन्स यू डोंट हैव टू बाइट पीपल but you at least threaten them that if you misbehave with me, I will bite you. Like you know that threatening has to be there. So then ये snake he changed his behavior. Okay. I hope ये relevant था. तो नाजा में है ना ये always duality रहती है कि I should be nice with people around or I should be you know I should be equal to that person. लेकिन he can't be equal to the other person because he is into the sensitivity to moral impressions. ये इंडियन स्नेक है अपना नाजा. सो इंडियन मेंटालिटी है ना कि we never fight with anybody, right? We are never we are defenders always. हमारे ऊपर सब लोग वॉर सब लोग हमारे पे अटैक किया है, हम लोग ने जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, राइट? तो दिस इज द इंडियन मेंटालिटी. तो ये नाजा का है ना, ये दिस ड्युअलिटी इज ऑलवेज देयर और ये ड्युअलिटी ये केस में नहीं था. थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया. ओके मैम, सुनीता मैम. वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू सो मच. ओके, बहुत बढ़िया मैम. या
बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा है मैम आपने, भी मिस नहीं करेंगे क्लिनिक में। हाँ जी हाँ ओके डॉक्टर अविनाश आपने ही हेमामेलिस बोला था ना? हाँ यस यस मैम। हाँ तो देखो हेमामेलिस का ना एक केस है एक एचएचएफ में एक सॉरी मैं वो डॉक्टर का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है लेकिन ये डॉक्टर ने ये केस प्रेजेंट किया था कि देयर वाज एन एल्डरली जेंटलमैन हु केम विद एपिस्टेक्सिस। डॉक्टर मयूरेश महाजन सर का ये केस है, उन्होंने दिया था सीटीपी में। तो वो आया एपिस्टेक्सिस, एल्डरली जेंटलमैन, ही केम विद हिज डॉटर और साइकोडायनेमिक्स है ना कि नोज में से ब्लीडिंग है। तो पूछा डायरेक्टली कि आप कौन आपका घर में यू नो हु इज अफेक्टिंग योर ईगो, हु इज हर्टिंग नोज ना अपना, व्हेन द नोज यस इज अफेक्टेड मींस आवर ईगो इज अफेक्टेड ना, अपना नाक होता है। तो पूछा यस कि हु इज हर्टिंग योर ईगो, तो ये बोला कौन करेगा, माय वाइफ। तो कैसे, तो बोला कि आई एम एन इंटीरियर डेकोरेटर और मेरा पूरा घर है ना रिनोवेशन में गया है। तो अभी मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ तो मैं अपना तो कुछ ओपिनियन दूंगा ही ना कि भैया ये ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो मेरी वाइफ है जो, आप इंटीरियर डेकोरेटर है ना बाहर हो, घर के अंदर है ना मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, वाइफ मत बी वेरी झलका मारा टाइप। यस तो वो ना इसको, ये बंदे को चुप कर दिया इसने कि तेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, जो करना है ना वो मैं ही करूंगी। यस तो यस his ego was so hurt कि ये हो गया उसका, ही स्टार्टेड एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग हो गया। यस तो और यहाँ पे ना उसका रिएक्शन है ना वो कोलोसिन जैसा नहीं था कि he stopped talking to that his wife or nothing like that, he was like bearing with her, यस यस बट उसका ईगो बहुत badly hurt. थैंक यू मैम। Okay, so that's all from my side for today. जी बताइए, किसी का और कोई क्वेरी है? जी जी अगर किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो I would like to add, ये हेमामेलिस के ना आई जस्ट वेंट थ्रू द सिम्टम्स रूब्रिक। तो हेमामेलिस का एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे अपने कोलोसिंथ में ना पूरा पूरा लिस्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम इसका कोलोसिंथ में, लेकिन यहाँ पे है एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन, एंगर, एंगर विद इंडिग्नेशन, एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड, सी ये इसमें नहीं है। देन एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स, डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स, elements from jealousy, disappointed love, moral excitement, mental exertion, यहाँ पे भी mortification है, elements from quarreling, reproaches, reputation loss of rudeness of others, being scorned. But hemomelis is not there in the rubric embittered, ठीक है? तो यहाँ पे ये कोलोसिन से डिफर होगा. Yes, it is not there in that rubric. Fine. क्लियर हो गया मैम। हेमामेलिस डेल्यूजन एप्रिशिएटेड डज नॉट, इसमें ये उसका इसके इस उसका कोर है वो। हेमामेलिस का? हाँ यस। ओके ओके, मेरे पास ना कोई हेमामेलिस का केस नहीं है तो मैं ना, मैम एक कोलोसिन का एक रूब्रिक है होम या हाउस के बारे में, ये केस ऐसे पढ़ाया था, मुझे अभी याद नहीं है अच्छा अच्छा कि वो डॉक्टरिंग लॉ था अभी उसका फिल जैसा अपन He is in होम और another हाउस। room. ऐसे ही होगा, टेलीजन रूम, ही इज इन अनदर रूम, ऐसी कोई रूब्रिक है। मतलब उनका घर खुद का घर जैसा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ ये ऐसा रूब्रिक है। हाँ हाँ हाँ, इन द she's moved to the other room, ऐसा कुछ है। हाँ वेट, हाँ आया था इसमें। अच्छा, और एक दूसरा ना कोलोसिन का एक केस मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी, ये मेरा केस नहीं है, अगेन मैंने एचएचएफ में सुना है कि वो लेडी है, मीन सी हाउ द पैथोलॉजी डेवलप्स।
शी केम विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, और उसमें उसको पूछा कि ये कैसे हुआ सब कुछ, तो शी सेड कि बहू आई शादी करके, तो बहू वॉज वर्किंग। ये लेडी ने क्या किया, बहू तो ऐसे ही मतलब सुबह होके चली जाती थी, तो ये कुछ डब्बा बना के उसको देती है। उसके कपड़े जो धोती थी ना, तो बोली कि मैंने वो बहू के अंडरगारमेंट्स भी मैंने धोए हैं। ओके। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उसका बेटा मम्मी के रूम में आया, एंड मम्मी और बेटा दोनों बाजू बाजू में सो गए थे। नाउ दिस इज सो इनोसेंट, नो, लाइक कभी हो सकता है ना ऐसा। तो बहू ने ये देखा, एंड देन शी पास्ड अ वेरी बैड कमेंट। हाँ, तो उसकी माँ ने सुना ये, तो एंड शी वाज सो हर्ट कि बेटा क्या माँ के पास सो नहीं सकता है क्या? हाँ, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उसको जो वो लगा ना, एंड देन हर डिग्निटी वाज अफेक्टेड, एंड द नी जॉइंट रिप्रेजेंट्स द डिग्निटी, एंड शी केम डाउन विद द ओए ऑफ द नी जॉइंट। सो उसने ये लगा कि बहू ने कैसा किया, मीन्स हाउ कैन शी टॉक लाइक दिस। सो कोलोसिन का ये होता है कि यू नो दे गेट हर्ट very badly, yeah, and then they develop the physical complaints. Okay, एक मिनट, मैं वो सर्च कर रही हूँ कि वो अपना कोलोसिन का रूब्रिक है ना, डिल्यूजन वाला। डिल्यूजन ट्रांसफर्ड टू अनदर रूम, ओनली रेमेडी कोलोसिन, ये है। अभी उसका एक्सप्लेनेशन आई कैन ओनली हियराइज राइट नाउ, ये केस को देखे हुए कि she was a mother to the granddaughter, like that was her role, that was one room she was in. But then this behavior of her granddaughter made her cut all the ties, and she was transferred to the other room. From the motherly attitude, she became totally opposite. So this is delusion transferred to another room. Maybe I'll see more cases of it, and then I can tell you better. Okay, sir. This is the final last. हाँ, थोड़ा मैं ऐड करता हूँ मैम इसमें जो आप बता रहे हो ना। एक्चुअली क्या है, कोलोसिन जो है ना वो जिससे भी जुड़ता है बहुत रिलीजियसली जुड़ता है, इसीलिए उसमें रूब्रिक है फियर टू लूज हिज रिलीजियस फेथ। तो वो अपने आईपीआर से बहुत रिलीजियसली जुड़ता है, इसीलिए उसको ये एक, लेकिन उसके आईपीआर जो बार बार से उसको र्यूडली बिहेव करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज उसके साथ यूज करते हैं ना, तो एक पॉइंट पर आके उसको डर लगने लगता है कि ये जो फेथ है उसका, ये उसको लूज कर जाएगा, मतलब वो उससे टूट जाएगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की किसी भगवान में या देवता में या किसी संत महात्मा में बहुत रिलीजियसली जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई एक टाइम आता है, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि वो एकदम ही टूट जाते हैं उनसे। तो कोलोसिंथ को वो फियर आता है, ये जो रूम वाला रूब्रिक है ना, वो फिर अपने आप को बिल्कुल एक अलग रूम में पाता है कि एक तरफ तो वो रिलीजियसली जुड़ा हुआ है, उसकी अटैचमेंट उस तरह से है, और फिर वो एम्बिटर्ड हो जाता है ना, टूट जाता है उससे। और दूसरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है र्यूड बिहेवियर को लेके, अब्यूजिव बिहेवियर को लेके, बहुत ज्यादा हर्ट फील करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। जैसे दूसरी रेमेडीज हैं, जैसे हेमामेलिस है, वहां पर उसका जो मॉर्बिडिटी है वो रिस्पेक्ट है, वो चाहता है कि उसके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दिया जाए। इसका वैसा नहीं है, इसका ये है कि मेरे को हर्ट नहीं करना चाहिए, मेरे को अब्यूज नहीं करना चाहिए, मेरे साथ र्यूड बिहेव नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये हर्ट होता है। जी मैम। बहुत बढ़िया प्रवीण सर, मस्त आपने एक्सप्लेनेशन किया इसका, थैंक यू सर। जी जी, वेलकम सर। तो थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति नहीं, वो तो उन्होंने तो कमाल कर ही दिया। जी 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 जी। तो एक्चुअली हम बहुत कम प्रेस्क्राइब कर पाते हैं कोलोसिंथ, कोल्चिकम, ये सब रेमेडीज हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा कंडीशनिंग उस तरह से होता है, तो हम उन्हीं रेमेडीज में जाते हैं।
तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार केस के लिए और VC के लिए। सच में ये हम सभी को प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। अब बैक ऑफ द माइंड कोलोसिंथ भी रहेगा कि कोलोसिंथ भी हम डेफिनेटली सर, सोच मुझे सकते हैं। सर, जी एक सर। एक जो पेशेंट है जो मुझे अभी लग रहा है कि जिनको मैं शायद दूंगा अभी इसके बेस पे, मैडम ने जिस तरह आपने सर जो बोला ना, ये दोनों चीजें मिक्स करके, मतलब बहुत अच्छा। कोलोसिन कभी सोचते नहीं है, नेटरम्यूट स्टेफी जब फेल होती है, कॉर्सिनोसिन फेल होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा शेड है इसका। इंडिग्नेशन, मिसडीड्स ऑफ अदर्स, यहाँ पर ये स्टेफिसगेरिया के बहुत क्लोज चला जाता है सर। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरों की जो मिसडीड्स रहते हैं उससे ये इंडिग्नेशन में चला जाता है, जो राइटियस एंगर होता है ना। फिर जैसे मैम ने मोर्टिफिकेशन का बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है ना, तो जब ये मोर्टिफिकेशन के लेवल पर चला जाता है ना, उस टाइम पे इसको वो फील आने लगता है कि अब वो जो रिलीजियसली इसका जुड़ाव है वो अब टूटने लगा है। वो टूट तो नहीं जाएगा, जैसे इस पेशेंट में ये डर था कि वो चीजें सच तो नहीं हो जाएंगी, वहां पर आके उसको डर लगने लगता है और फिर वो एकदम एम्बिटर्ड में चला जाता है। ऐसा जर्नी रहता है सर कोलोसिन का। इसीलिए वो एक्सट्रीम लेवल के पेन्स भी इसीलिए आते हैं क्योंकि इमोशनली भी बहुत पेन से गुजरता है। बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत ज्यादा। जी जी जी, बहुत सेंसिटिव है सर। तो थैंक यू बोलते हैं हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति जानी मैम को। वंडरफुल केस मैम, ब्यूटीफुल लर्निंग, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज की शानदार VC के लिए। तो हमारे सभी जी, थैंक यू परवीन और सर, आपको भी बहुत बहुत, जी आपके वजह से हम सीख रहे हैं, IHF की वजह से। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और thank you to providing कंग्रेचुलेशंस टू platform. डॉक्टर जागृति कोठारी मैम, और हाँ, जिन्होंने केस को क्रैक किया है। जी मैम। जागृति मैम ने केस दिया और दूसरी जागृति मैम ने क्रैक कर दिया, बढ़िया। जी 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 सही जी है। हाँ. जी सर। Okay. Thank you, sir, for जी letting me जी present this case here. जी जी, माई प्लेजर मैम। तो वंड अप करते हैं आज की इस VC को। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू टू Thank you. ऑल, थैंक यू। गुड डे। Good. थैंक यू मैम।